Hello friends, in last video I gave you an assignment about a very simple program of developing a calculator in C programming, in which I ask you to develop a thought process how in real life situation the given assignment works. I ask you to write in your own language on a piece of paper what steps you follow in using a calculator. Those steps will be converted into a flowchart and subsequently into a C program. Some have responded, so I will solve the steps for you in this video. When we use a calculator in real life, what we do? We give input in terms of नंबर्स. जिन नंबर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उन नंबर्स को हमें कैलकुलेटर में डालना है विद द हेल्प ऑफ की. राइट. सेम वे इन सी प्रोग्रामिंग आल्सो विल डू नंबर्स एंड ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. these we choose. Then calculator give us output. On screen we get our answer. Right. Some have responded by telling me these steps, input and output. But we are so habitual of using a calculator that we forget that some processing calculator is doing. This is okay, we are doing processing of commands given by us by user is being done by calculator. Now you see the person who developed the calculator, he has taught the calculator what to do in different situations. Taught how some program is added into its processor, calculator processor. That we are doing here in C. So इनपुट आउटपुट के बीच में क्या स्टेप आ गया? कोडिंग फॉर लॉजिक. कोडिंग. Right. For input, now we move on to syntax. As I told you, the syntax means style and exact words, exact symbols we give in program which compiler of C knows. If we do a simple mistake of comma, semicolon, it will give an error. So this is something to be scanf is the function. There are many, I told you, many library functions, mathematical operators, header files. There are so many things which are already taught to C. This is one of the function, scanf. Now we will study its exact syntax, how scanf should be entered in your program. Not a single mistake is to be done, it will throw many errors. So for that I will move on to a small PPT.
How to use conversion specifiers to read input in C. Understanding the scanf function. Scanf function is used to read formatted input from standard input, that means keyboard. कीबोर्ड से जो इनपुट डाली जा रही है उसको scanf फंक्शन रीड करता है. वो उसकी फॉर्मेटेड इनपुट होगी. क्या मीनिंग है फॉर्मेटेड इनपुट का, मैं बताता हूँ. ये क्या कैप्चर कर रहा है, scanf कैप्चर कर रहा है यूजर इनपुट इन सी प्रोग्राम्स. scanf का पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग. व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग? It tells that what C compiler should expect, whether we are going to enter integer, float, double, character, string. For everything we want to enter, there is a different specifier. We'll read in next slides. It will also tell data types. There are some words coming which uninitiated, जिसने अभी कंप्यूटर साइंस के बेसिक नहीं पढ़े, किसी भी लैंग्वेज के बेसिक नहीं पढ़े, उसके लिए ये वर्ड नए हो सकते हैं. डाटा टाइप्स, फॉर एग्जांपल आई टोल्ड, देन फ्लोट, डबल, these are our data types. What is integer? In mathematics we use integers, the same integer. Float is for decimal number, small decimal number, and double is big decimal number. This is memory allocation for these data types we are specifying. So in developing a computer program, we should take note of two things: time of processing and memory allocation. So if we expect the user to enter small number, decimal number, we should use float. Float will occupy less memory. If we know that we are giving flexibility to user to add big numbers, then we'll use double. This is the starting point of scanf function. As you can see, scanf bracket starts, inverted comma, percentage LF. This LF is reserved for double. Percentage LF, then inverted comma, close and comma. Here in dotted lines, you will enter the variable which you have already specified, declared in your program. अब कंपाइलर को क्या पता है कि अगर हम यहाँ पे num1 डालते हैं, फॉर एग्जांपल, ये num1 हमने यहाँ पे डाला, ये num1 क्या है? ये हमारी चॉइस है. किसके लिए? जो भी यहाँ पे डेटा एंट्री होगी उसके पहले नंबर के लिए num1, दूसरे नंबर के लिए num2. ये कुछ भी तुम्हारी चॉइस है, तुम इसमें A और B भी डाल सकते हो. करेक्ट? जितने यहाँ पे नंबर हम डालने जा रहे हैं उतने ही यहाँ पे उन नंबर्स की हमें स्पेसिफिकेशन देनी है कि वो लॉन्ग है, इंटीजर है, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग. So LF is reserved for, in this particular program I am developing, LF is for double. So a user can add 3.14682 any this kind of decimal number. We cannot restrict the user to add only integer in the calculator case. That's why we have taken double. And he can enter long number also, 3 point up to 8 decimal, 10 decimal. So double is chosen. So conversion specifiers begin with percentage sign followed by characters that specify the type of data to be read. Percentage D, for example, specifies integer to be read. Then these are the common conversion specifiers. As I already told, percentage D is integer, percentage F is for floating point value, percentage C for single character, S for single or string of characters,
LF for double precision floating point value. आफ्टर द फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद scanf एक वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल लेगा, उतने ही होंगे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स जितने हमने परसेंटेज के बाद स्पेसिफायर ऐड किए हैं। और कन्वर्सली हमें ऑलरेडी पता है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, नॉट जस्ट कैलकुलेटर, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कि इनपुट 3 नंबर आने हैं। फॉर एग्जांपल आगे प्रोग्राम आएगा कि लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में प्रोग्राम है सी में, गेट लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो जब हम 3 नंबर का प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे 3 नंबर स्पेसिफाई करेंगे, ए बी सी। उन 3 के लिए हम परसेंटेज एल एफ 3 बार लिखेंगे। यू गॉट द पॉइंट कि जितने नंबर इनपुट हम करवा रहे हैं उतने ही परसेंटेज स्पेसिफायर, परसेंटेज के बाद स्पेसिफायर वहाँ पे हम लिखेंगे। अगर एक भी गलती हुई कि नंबर तो वहाँ पे 3 ऐड करा दिए और स्पेसिफायर 2 लिखा तो एरर आ जाएगी। तो जितने भी और आर्ग्यूमेंट है वो किस चीज़ के पॉइंटर हैं? एक वेरिएबल के जो हमने डिक्लेयर किया है, जहाँ पे इनपुट जाके उस वेरिएबल के मेमोरी एलोकेशन में, मेमोरी के खाने में जाके वो इनपुट बैठ जाएगी, ताकि उसको प्रोग्राम आगे वहाँ से रिट्रीव करके उठा के उसका ऑपरेशन कर सके। करेक्ट? एक इमेजिनेशन कर सकते हो मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे कोई आपके अलमीरा, एक कबर्ड है, उसके खाने हैं, तो वो खाने हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं, बॉक्सेस हमने स्पेसिफाई कर रखे हैं। यहाँ पे वेरिएबल num1 आएगा, यहाँ num2 आएगा, num3 आएगा। तो जो हमने आर्गुमेंट दिए 3, 2 हमारे केस में, तो वो किसको पॉइंट कर रहे हैं? इनपुट वैल्यू, जहाँ पे जिस जगह पे, जिस मेमोरी की जगह पे एलोकेशन हमने की है, वहाँ पे जाके उसने स्टोर होना है। Number and type of argue must match, I have already told. So this was about scanf. Now we move on to our whiteboard and see what are the subsequent steps. You just go on noting down, be interactive while attending the class. Be interactive, don't take it just casually. You keep a diary and pen with you, go on noting down. There may be some points which are not very clear to you at this stage, but when we write a program, first program, then everything will start falling in place. Right? Scanf. Now for output there is a function printf. In input also printf is used in conjunction with scanf. Printf means the output program gives. Why in the input printf is needed? Because you have to give direction, your program has to give direction to user. Very first thing is you may tell the user what this program is all about. It is calculator, or whatever language you need, it is your choice. First line may be welcome to this C program, welcome to my first program, welcome to calculator program. Here you can do whatever you want to write. You may write printf statement. The syntax of printf will be discussed later on. First line will be welcome line. Then before scanf we have to tell the user what we are expecting from him. Then also printf statement will come in handy. Printf statement will tell enter your operator. Operator is what? Divide. We have chosen only these 4 operators to be used in our simple calculator program. We are not using square root, we are not using modulus. All these you can add when you learn. You can make it bigger. Just for a opening program,
I have chosen these four operators. What these four operators are? These are characters, not string, character, because they are single. What are characters? M alphabet, N alphabet, A, N. These are characters. There are so many characters. So we are concerned with these four characters. So what will be specifier? Percentage C. Before that, what will be printf statement? Enter operator. Now the program has instructed, इसने यूजर को बता दिया है कि भैया ऑपरेटर ऐड करो. अब उसने की से ऑपरेटर ऐड कर दिया डिवाइड. तो स्कैनएफ ने क्या किया? ऑपरेटर. हमने ऑपरेटर के चलो ओपी रख लेते हैं. तो हमने जब प्रोग्राम के शुरू में जब अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए तो डबल के लिए क्या था, या सिंपली फ्लोट भी रख सकते हैं, फ्लोट और डबल. चलो डबल रख लेते हैं. डबल क्या क्या थे? num1 num2 की बजाय हम ABC रख लेते हैं सिंपली. अभी ABC, double ABC semicolon. Now ABC, with this name ABC memory has been allocated. वहाँ पे खाने बॉक्स डब्बे बन गए हैं जिनमें A और B और C की वैल्यू जाएगी. बट इन अवर प्रोग्राम वी आर नॉट टेकिंग C, A और B ओनली. AB सेमीकोलन. देन व्हाट नेक्स्ट? और क्या एंटर करा रहे हैं? ऑपरेटर. ऑपरेटर के लिए हमने क्या वर्ड सोचा है? ओपी. ओपी क्या है? कैरेक्टर. 4 ओपी ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं. तो स्कैनएफ में परसेंटेज सी के बाद ओपी डाल दिया हमने, कोई इन्वर्टेड कोमा नहीं. यहाँ पे जब वो डालेगा, चूज करेगा यूजर, प्लस चूज करेगा, तो ओपी में ओपी पहले यहाँ पे स्पेसिफाई है. प्लस जैसे उसने चूज किया, एंटर किया, तो वो प्लस जाके ऑपरेटर वाले बॉक्स में चला जाएगा. अब प्रोग्राम को पता है कि ओप हमारा प्लस है. लॉजिक में हमने अभी लॉजिक भी डेवलप करेंगे. उस लॉजिक में उसको पता है लॉजिक में कि ओप वाले केस को उठाना है. ओप में प्लस है, जो प्लस वाले केस को उठाना है. प्लस वाले केस में हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि A प्लस B करना है. मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस जो है उसको कंपाइलर पहचानता है कि जब प्लस उसमें लिखेंगे हम, तो प्लस एक स्टैंडर्ड है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको वो पहचानता है. जैसे हम लिखेंगे A प्लस B. अब प्लस कहाँ से आया? उसने स्पेसिफाई किया. प्लस को हमने यहाँ पे यूज़ किया. किस लिए यूज़ किया? उसको कंपाइलर पहचान रहा है कि प्लस का मतलब मैंने इन दोनों को का सम निकालना है. अब ये कहाँ पे स्टोर होगा? हम उसके लिए रिजल्ट भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, जो आपके माइंड में आए वो लिखो. सम इज इक्वल टू A प्लस B. नाउ अब हमें सम तो कंप्यूटर पहचानता नहीं, कंपाइलर पहचानता नहीं कि सम क्या चीज़ है. तो हमें यहाँ पे A B के साथ साथ डबल. अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? जब हमने डबल लिया तो आंसर भी डबल में आएगा. तो इसलिए सम को हमने डबल से स्पेसिफाई किया, डबल से डिक्लेयर किया. अब डिक्लेयर कर दिया तो कंपाइलर को पता है सम क्या है, तो A प्लस B को सम के अंदर वो स्टोर कर देगा. अब इसने अपना प्रोसेसिंग कर दी. हमने उसको सिखा दिया कि जब यूज़र प्लस चूज़ करे, A चूज़ करे, B चूज़ करे, उनको ऐसे ऐड करना है. उसने अपना काम कर दिया. काम तो पूरा नहीं हुआ, उसने तो कर दिया काम.
उसको स्क्रीन पे भी तो दिखाना है। अब हम आउटपुट पे आ जाते हैं। आउटपुट पे वी गेट आवर आंसर बाय printf, right? In next video we will study in detail this program, its logic, its मैं थोड़ा सा हिंट अभी दे देता हूँ। इसमें 2 लॉजिक बनेंगे। आपने अब जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, 1 दिन का टाइम लीजिए, उसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी में लिखिए कि हम उसको क्या बोल सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इफ ऑपरेटर चोजन इज प्लस देन डू दिस। ये भी हम प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। देन डू सम इज इक्वल टू a प्लस बी। इफ ऑपरेटर चोजन इज माइनस देन डू, we can give a more general name instead of sum। यहां पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट। यहां पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट। तो रिजल्ट एक कॉमन जेनरिक वर्ड है, तो उसमें सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सबके लिए ठीक रहेगा। सम तो सिर्फ एक के लिए ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पे हमारा माइनस के केस में रिजल्ट इज इक्वल टू, तो अब देखो ये आपके सामने मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है, टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट कर रहा है। लॉजिक टाइम टू टाइम डेवलप हो रहा है। कोई मैंने क्रैमिंग नहीं कर रखी है। मैंने पहले सम लिया तो उस टाइम मेरा माइंड कहाँ तक चल रहा था, लिमिटेड चल रहा था, सिर्फ प्लस मेरे माइंड में था। मैंने सम ले लिया। जब मैं माइनस वाले एग्जाम्पल पे गया तो मुझे ध्यान आया कि सम तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा इसमें। हमने तो प्रोग्राम लिख दिया, आंसर ठीक आ जाएगा, सब कुछ ठीक आ जाएगा, बट इसी प्रोग्राम को कोई हमारा साथी दोबारा कुछ इंप्रूव करना चाहेगा तो सम वर्ड से कंफ्यूज हो जाएगा कि लिख तो हम सम रहे हैं और कर डिवाइड रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपडेट कर दिया अपने आप को, सम की बजाय रिजल्ट लिख दिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम जब लॉजिक डेवलप करेंगे तो हमें अपनी खुद की एरर पता चलेगी, उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है, आप प्रोग्रामिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएगा, तो एरर के साथ तो आपका रिश्ता सारी उम्र रहना है। एरर से ही आप सीखोगे। जब आप इसको किसी प्रोग्राम को लिखोगे तो बहुत सी एरर आ जाएंगी। एक सिंपल एरर से, एक छोटी सी एरर शुरू में हो जाती है, उससे 20-20, 30-30, 50, 100 एरर आ जाती हैं। जैसे ही वो हमने कॉलन या कोई सिंपल सी गलती दूर की तो सारी एरर रिमूव हो जाती हैं। तो आपको ऐसे मज़ा आता है जब आप एरर को रिमूव करोगे कि जैसे आपने, और जब प्रोग्राम रन हो जाता है और आउटपुट ठीक आ जाती है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने कोई वीडियो गेम में कोई लेवल अचीव कर लिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है प्रोग्रामिंग, अगर आप इसको सिस्टमेटिक अपने माइंड से करोगे। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग को कुछ, मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया था, क्रैमिंग करोगे तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसमें एन्जॉय वाला फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर तो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर बाद में जॉब में, इंटरव्यू में, हर जगह परेशानी आएगी अगर लॉजिक आपके पास नहीं है तो इसलिए प्ले और बार बार क्या करो, एरर डाल के देखो। चलो मैं ऐसा करके देखता हूँ, जो आपको बताया नहीं करना वही करके देखो, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जो सारा लॉजिक है, अगर इफ़ ऐसा करना है तो उसके लिए सी लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया कि सी लैंग्वेज भी तो ह्यूमन ने डेवलप की है, कोई एलियन ने नहीं की है। तो उसने जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उससे ही उसको कंपेयर करवाया है चीज़ों को। हर जब लैंग्वेज डेवलप होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस लैंग्वेज को, जो भी कॉमन लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, उससे मैच कराया जाता है। कि जैसे हम इंग्लिश में सोच रहे हैं इफ़ देन, तो इसी से इफ़ एल्स लेटर बन गई। इफ़ एल्स इफ एक चीज़ है, इफ़ एल्स अदर चीज़ है। इफ़ एल्स क्या है, अगर 2 ही चीज़ें हैं, अगर ऐसा है तो भैया ऐसा कर दो, ऐसा नहीं है तो वैसा कर दो। अगर 2 केस में तो क्या होगा, मैं थोड़ा थोड़ा लॉजिक, वैसे मेरा इस वीडियो का प्रीव्यू था नहीं, पर थोड़ा थोड़ा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में करेंगे। इफ़ एल्स में क्या होगा, ये इंग्लिश है ना, इसी को उठा लिया सी लैंग्वेज बनाने वालों ने, कि इसी को स्टैंडर्ड उसको सिखा दिया कि इफ़ एल्स का क्या मीनिंग है।
अगर प्रोग्राम में कोई प्रोग्रामर इफ़ एल्स का यूज़ कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, कहाँ पे करली ब्रेसिस आएगी, कब क्या करना है। इफ़ वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाएगा एक वीडियो में आप लोगों के लिए। इफ़ एल्स का मतलब जब दो ही केस हो, इफ़ एल्स इफ लैडर, इसमें मल्टीपल केसेस हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, फिर उसके बाद फिर एल्स इफ, अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो। ऐसे हम लैडर करते जाएंगे। मान लो 10 केस भी हैं तो हम करते जाएंगे। ऐसा है तो भाई ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो। लास्ट में क्या आएगा? एल्स इफ नहीं आएगा, लास्ट में क्या आएगा? एल्स। आपके 10 केस हैं, 10 में से 9 आपने कर दिए इफ, पहले ही केस मिल गया। जैसे हमारा प्लस माइनस 4 ऑपरेटर है तो 10 नहीं, हम चलो 4 की बात करते हैं। इफ ऑपरेटर इज प्लस, पूरा सिंटैक्स नहीं लिख रहा मैं, इंग्लिश से ही मैच करा रहा हूँ अभी। इफ ऑपरेटर इज प्लस देन डू दिस, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। एल्स इफ इफ ऑपरेटर इज माइनस, डू रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। एल्स इफ ऑपरेटर इज स्लैश is reserved for division, slash is for division, this is our common division notifier. This is not the right one for C has slash for division. Multiply we do by this symbol, but in C multiply की जगह क्या है? स्टार। तो हमें क्या याद रखना है? डिवाइड स्टार प्लस माइनस, प्लस की जगह प्लस या माइनस की जगह माइनस ही। तो हम 3 केस करते जाएंगे। इफ प्लस वाला, एल्स इफ, ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे इफ शुरू में आप चाहे डिवाइड लिख लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एल्स इफ में माइनस वाला केस, फिर एल्स इफ डिवीजन वाला केस, लास्ट में क्या आएगा? सिर्फ एल्स, मल्टीप्लाई वाला केस। तो ये लॉजिक का जो पार्ट आएगा ये हमारी सिंपल है। अब इसमें मैं थोड़ा और ओवरव्यू देता हूँ। अब जो बहुत सारे केस होते हैं तो इफ एल्स इफ वाली सिंटैक्स थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं एरर के चांस होते हैं। तो उसमें एक स्विच वाला भी ऑप्शन है। 2 मेथड, हम दोनों मेथड से करेंगे। स्विच में सिंपली है, स्विच में केस ए केस बी के ए बी तो मुझे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ए बी को हमने यहाँ पे डबल के तौर पे यूज किया है, तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। स्विच में क्या है? केस प्लस, केस माइनस, केस डिवीजन, केस मल्टीप्लिकेशन। उसमें सिंटैक्स थोड़ा सिंपल हो जाता है, उसमें एरर का चांस कम होता है। जिसकी जो चॉइस है, अगर उसको आपको इफ एल्स वाला सिंटैक्स अच्छी तरह समझ आ गया तो वो यूज़ कर लेंगे। तो बड़े आराम से सिस्टमेटिक करते जाओ, कुछ भी याद नहीं करना है। मेरी वीडियोस का सिंपल सा एम है, बहुत सी वीडियोस हैं, बहुत लोगों ने सिखा रखा है, बहुत अच्छे ढंग से सिखा रखा है। आपके क्लास में, कॉलेज में बहुत अच्छे ढंग से लोग कराएंगे, आपको सब अच्छे ढंग से कराएंगे। बट मेरा एम एक कॉमन से टॉपिक पे वीडियो बनाने का क्या है, मैंने अपने लाइफ में प्रिंसिपल रहते हुए बहुत बच्चों को अटेंड किया है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत से कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलीटेक्निक्स में। तो मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी है कि कुछ क्रैमिंग की जो आदत है ना, उससे वो इतने अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बन पाते। फिर वही मैंने जो बताया था कि एक को तो 50 लाख का पैकेज मिलता है, एक को 10-15 हज़ार के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो वो क्या देखता है इंटरव्यूअर कि बच्चे का लॉजिक कितना डेवलप है। क्या मैं उसको अभी कोई प्रॉब्लम दे रहा हूँ तो अभी के अभी उस प्रॉब्लम को सुन के उसका कुछ ना कुछ पार्ट 80% 70% कुछ वो लॉजिक का रफ स्केच बना पा रहा है, या वो अपने माइंड में वही सोच रहा है कि ये प्रोग्राम हमने कब किया था, तब मैंने रटा था, क्या रटा था। वो रटी हुई क्रैमिंग वाली चीज़ें अगर कोशिश करोगे वो कभी याद नहीं रहेंगी, एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही आप उनको भूल जाओगे। तो मेरा एम इन वीडियोज़ को बनाने का सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करने का है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बनाना है, हमने कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है। जैसे आज के एग्जांपल में मैंने सम ले लिया था, बाद में पता चला रिजल्ट ले लिया, तो कितनी देर लगी मुझे। और कुछ भी आपके जो एग्ज़ाम में कोई भी नया प्रोग्राम आ सकता है। 15 प्रोग्राम शायद स्पेसिफाई हैं प्रैक्टिकल में, ज़रूरी नहीं है उन 15 में से आएगा।
कोई भी प्रोग्राम आ सकता है उस 3 घंटे के टाइम में से। उस क्वेश्चन के लिए अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट में आपने उसका पूरा लॉजिक सोचना है। तो उसकी जितनी प्रैक्टिस अभी कर लोगे तो आप एक कामयाब, एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।